Inductance. Can anybody tell me what yesterday we discussed? Yes. Self-inductance. Self-inductance. So yesterday we discussed and derived the relation for the self-inductance. Okay. So what is self-inductance that we know, right? Now whenever we will vary the current flowing through a coil, that time that change in the current in the coil causes to induce the flux inside the coil, and that induced flux induces or produces the EMF. Sorry, it induces the flux inside in the coil, and that flux, it is nothing but the your self inductance, right? So that depends on what? Can anybody tell me? It depends on the number of turns of the coil. How many turns are there? Because the self inductance L is always given as N square, the square of the number of turns. So it depends on the number of turns. Greater the number of turns of the wire of the coil, greater the inductance. Also coil area, if coil area is more, then more will be the inductance. Core material, it also causes or depends your self inductance, and also the coil length. So these are the factors, right, on which your inductance is dependent. Okay. So this relation once again we will see, right? We derived that L is equal to N square mu A upon L. Mu is mu 0 mu R A. Now you remember this formula. L is equal to N square mu A upon L. Okay. N is the number of turns of the coil. Mu is the absolute permeability. A is the area of the coil, and L is the length. Okay, so you remember this. Now on this topic we will going to solve the numericals now. Okay, today we will solve some numericals on this topic, right? So before that, let us revise. L is equal to N phi upon I, where phi is nothing but your ratio of MMF, magnetomotive force, to reluctance, that is Ni upon S. Okay, and from this we derived the relation for inductance. L is equal to Ns square mu 0 mu R A upon L, and it is always measured in the Henrys. So now we switch over to the numerical. Okay, so you first read the numerical very carefully. See what is there given in the example. The field coil is wound with 600 turns. When a current of 6 ampere flows through it, produces a flux of 2 milliweber. Find self-inductance of the coil. So once again you read it very carefully and note down what is the given. The very first statement in the example is the field coil is wound with 600 turns. Right? So figure आप याद करो, or otherwise you draw the figure for this. एक coil निकालो and write down there N is equal to 600 turns. N is given as 600 turns, and through that coil current of 6 ampere is flowing, and that current produces a flux of 2 milliweber. Remember, it is a milliweber, unit is milliweber. And find self inductance of the coil. So this is the given data, right? So always write down what is the given, right? In solution, very first step is note down what is the given, right? So given here is number of turns. N is equal to 600 is given. Current flowing through the coil I is given, that is 6 ampere, and flux phi is 2 milliweber. Convert it into Weber. So 2 milli means, can anybody tell me milli means 10 to the power minus 3. Okay, so it is 2 into 10 to the power minus 3 Weber. So like this, you first note down all the given data, convert into the required units. Okay, and then proceed. And before that also write down or draw the figure. Figure makes the problem very simple, right? So sketch the figure. Figure आपको खाली एक simple coil निकालना है, और coil में current I is flowing ये दिखाना है. I का वैल्यू है 6 एम्पियर, N का वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स का 600. ओके, तो ये आपको वहां पे फिगर में दिखाना है.
फिर अभी आपको पूछा क्या है, व्हाट इज, ये आस्क्ड टू डिटरमाइन द फाइंड, ये आस्क्ड टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है तो फार्मूला हमें पता चाहिए, इज इट? तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है, तो क्या है, तो हमें देना है, राइट? सो टू फाइंड L, दिस इज द फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज N phi upon I, इज इट? तो ये N phi upon I इज द फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। तो N हमें पता है, L हमें कैलकुलेट करना है, फाई का वैल्यू भी दिया है 2 मिलीवेबर, I का वैल्यू भी दिया है, बराबर। अभी हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, फाई का वैल्यू डाल के n स्क्वायर का वो इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें μ0 μr a का वैल्यू नहीं दिया है, बराबर कि नहीं? तो हमें ये इक्वेशन यूज करना है, L इज इक्वल टू N phi अपॉन I, L इज इक्वल टू N phi अपॉन I, ये इक्वेशन में यूज करना है। एंड ये इक्वेशन में पुट डाउन द वैल्यू ऑफ N, व्हाट इज इट? इट इज 600 टर्न्स, सो राइट इट डाउन 600 into 5, 5 का वैल्यू क्या है, 2 मिलीवेबर, मींस 2 into 10 the power -3, ओके, अपॉन I का वैल्यू दिया है 6 एम्पियर, तो ये एम्पियर है, ओके, हमें एम्पियर में ही लेना है। यदि ये एम्पियर की जगह पे मिली एम्पियर रहता था, माइक्रो एम्पियर रहता था, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ता था, ओके। द वैल्यू ऑफ I इट ऑलवेज शुड बी इन एम्पियर्स, so it is already given in amperes, so I put it here 6 ampere। तो ये कैलसी पे आप सॉल्व करके देखो, you will get the answer of 0.2 Henry, okay, 0.2 Henry। and always keep the practice of using the calculator, okay, कैलकुलेटर यूज करके आपको ये कैलकुलेशन करना है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, and it will come 0.2 Henry। and don't forget to give the unit of the inductance, it is always H, okay, so 0.2 Henry। एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं, इवन इन एमसीक्यूज, राइट? ऐसा प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट 6 एम्पियर एंड द फ्लक्स जनरेटेड इज 2 मिलीवेबर। दैट टाइम आप हमें खाली एमसीक्यू के आंसर में ऑप्शन दिए रहेंगे, एक 0.2 हेनरी रहेगा, दूसरा 0.2 फैराड रहेगा, तीसरा 0.4 हेनरी रहेगा, 0.25 हेनरी रहेगा। तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, दैट इज 0.2 हेनरी। अब ये करेक्ट आंसर आप कब चूज कर सकेंगे? व्हेन एवर यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। तो बाजू में आपको एक रफ पेपर रखना है और रफ पेपर के ऊपर आपको ये सॉल्व करते जाना है और राइट आंसर निकाल के करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ओके। सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस सॉल्यूशन? आपके समझ में आ गया? Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम अभी। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे भी देखो क्या दिया है, सो रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। द मीन डायमीटर ऑफ स्टील रिंग इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया है? स्टील रिंग दी है। लास्ट एग्जांपल में क्या था? कॉइल था। द मीन डायमीटर, concentrate on the word mean, mean diameter. The mean diameter of a steel ring is 40 centimeter and flux density of 0.9 Weber per meter square is produced by 3580 per meter ampere turns per meter. If the cross section of the ring is 15 centimeter, if the cross section area of the ring is 15 centimeter and number of turns 440, then calculate first exciting current and self inductance in Henry। अभी देखिए ये एग्जांपल में हमें क्या पूछा है? करंट, एक्साइटिंग करंट हमें पूछा है और सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। और करंट कैसे? इतना करंट निकालना है कि 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर का डेंसिटी हमें मिल जाए, राइट? और वो स्टील रिंग दी है, स्टील रिंग का डायमीटर हमें दिया है, मीन डायमीटर इट इज 40 सेंटीमीटर, ओके। सो यू केयरफुली रीड इट एंड देन नोट डाउन द गिवन डेटा, ओके।
गिवन डेटा क्या क्या है, राइट दिस लाइक दिस, यू नोट इट डाउन। डी डायमीटर, मीन डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। देन फ्लक्स डेंसिटी दी है, फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ बी इज गिवन। अभी आप जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी उसको फाई बोल देते हैं। क्या फ्लक्स डेंसिटी को फाई दिया है भाई, फाई इज इक्वल टू 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बट इट इज फ्लक्स डेंसिटी, राइट। फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर बी and it is 0.9 Weber per meter. Then next is given as it processed 3500 ampere turns per meter, right? H is equal to 3500 ampere turns per meter. A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितना दिया है, the cross sectional area is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। n दिया है 440 टर्न्स, और IT सॉरी LT निकालना है हमें, L निकालना है, राइट, दैट इज लेंथ ऑफ द रिंग निकालनी है। अभी हमें तो खाली डायमीटर दिया है, लेंथ ऑफ द रिंग तो दी नहीं है, तो हाउ विल यू फाइंड इट आउट, क्योंकि हमें लेंथ लगेगी, राइट, लेंथ ऑफ द रिंग लगने वाली है, स्टील रिंग का लेंथ हमें लगेगा। तो डायमीटर, मीन डायमीटर दिया है, ओके। अभी डायमीटर, अभी इट इज एज गुड एज दैट रिंग इज नथिंग बट अ सर्कल, दैट स्टील रिंग इज नथिंग बट अ सर्कल। सर्कल का डायमीटर दिया है, राइट, तो हमें उसका सर्कमफरेंस निकालना है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफरेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफरेंस? 2 pi r, 2 pi r, 2 पाई आर, लेकिन हमें यहाँ पे आर दिया नहीं है, हमें डायमीटर दिया है। एंड व्हाट इज डायमीटर? डी इज इक्वल टू 2r, बराबर के ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड ये 40 दिया है। सो इंस्टेड ऑफ 2 पाई आर आई विल टेक circumference of a circle as equal to pi d, okay, it is pi d, d का वैल्यू दिया है, so put pi into 40 centimeter, so you will get 125.6637 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमें मिलेगा, राइट। तो ये आप कैलकुलेटर पे निकालो और वेरीफाई करो ये करेक्ट है या गलत है, ओके। तो ऐसा हमें लेंथ लगने वाला है, तो लेंथ हमने निकाला। कैसे निकाला? हमें डायमीटर दिया है, राइट, स्टील रिंग का डायमीटर दिया है, हमें सरकमफरेंस लगने वाला है, सरकमफरेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्टील रिंग। तो ये हमने ये फार्मूला यूज किया, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग इज इक्वल टू पाई डी, ओके, और ये लेंथ निकाल दी। अभी हमें और क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्साइटिंग करंट, दैट इज आई, वैल्यू ऑफ आई निकालनी है, और वैल्यू ऑफ एल निकालना है, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। तो अभी कैन एनीबॉडी टेल मी कौन सा फार्मूला हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे? तो दिस इज दी, पहले हमें तो क्या निकालना पड़ेगा? आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई का वैल्यू कहाँ से मिलने वाला है? हमें एमएमएफ से। हमें एमएमएफ का फार्मूला पता है, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ओके। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एनआई, एंड दैट एनआई इज इक्वल टू एच इंटू L, okay, Ni is equal to H into L, and L is यहाँ पे टोटल लेंथ ली है हमने, that is टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। तो ये भी हमें पता है, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग पता है, हमें वैल्यू ऑफ H भी पता है, वैल्यू ऑफ N भी पता है, और I का वैल्यू we can easily find it out, right? So I is equal to H into LT upon N, number of turns, okay? तो ये यहाँ पे हमने H का वैल्यू रख दिया 3500, LT टोटल लेंथ ऑफ द रिंग रख दी यहाँ पे 125.6637 सेंटीमीटर थी, ये हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गए, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टन्स, दैट इज 440 टन्स, ओके। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलने वाला है इसका? 10 एम्पियर, ओके। सो द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी that will 10 एम्पियर। so 10 एम्पियर का करंट हमें वो रिंग में से फ्लो करना पड़ेगा, ओके। ना अभी आगे क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकालना है, ओके। वैल्यू ऑफ फ्लक्स
फाई इज इक्वल टू बी ए, ये फार्मूला हमें पता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। बी का वैल्यू हमें दिया है, राइट, क्या है, इट इज 0.9। ओके, ये देखो एग्जांपल में और एक बार देखिए, व्हाट इज द गिवन, बी का वैल्यू ये दिया है, बी इज इक्वल टू 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी। ओके, द फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे दिया है, फाई इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू 0.9 इनटू ए, एरिया अभी हमें निकालना पड़ेगा, बराबर। एरिया दिया है, क्या एरिया दिया है, यस दिया है। ओके, एरिया ऑफ द रिंग इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मीटर होगा, मल्टीप्लाई बाय, व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनटू स्क्वायर मीटर, यस, कैन एनीबॉडी convert square centimeter 10 to raised to minus square meter, yes बेटा, 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये हमें फाई मिल गया, राइट, 0.9 इंटू 15 एरिया इंटू 10⁻⁻⁴, एंड दैट इज इक्वल टू 1.35 मिली वेबर। ओके, ये इट इज मिली वेबर, ये फाई फ्लक्स आ गया। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है, n फाई अपॉन आई। अभी मेरे पास n का वैल्यू है, फाई का वैल्यू अभी मैंने निकाल दिया, आई का वैल्यू भी 10 एम्पियर निकाल दिया। पुट ऑल दिस पैरामीटर्स इन दिस इक्वेशन, L इज इक्वल टू n फाई अपॉन आई, बराबर। इसमें रख दो, n का वैल्यू 440 है, इंटू फाई का वैल्यू ये 1.35 मिली वेबर है, तो 10⁻³ बराबर, 1.35 इंटू 10⁻³ अपॉन आई, दैट इज 10 एम्पियर। ये कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर एज 0.0594 हेनरी। ओके, आप सबको ये कैलकुलेटर यूज करके देखना है, बराबर। बी हैबिचुअल विथ द कैलकुलेटर, ऑपरेटिंग द कैलकुलेटर, ओके। अदरवाइज एग्जाम में यू कांट ऑपरेट दैट। ओके, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ये प्रैक्टिस करना है आपको कैलकुलेटर यूज करने की। ओके, एंड ऑलवेज यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर इट। ओके, डोंट यूज योर मोबाइल फोन, एग्जाम में आपको मोबाइल फोन अलाउ नहीं होगा। ओके, आपको कैलकुलेटर ही यूज करना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर ये कैलकुलेशन करो और वेरीफाई करो वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। रॉन्ग है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, क्या निकालना था हमें, करंट का वैल्यू आई निकालना था, 10 एम्पियर आ गया, बाद में फाई निकाला 1.35 मिली वेबर आ गया, और इंडक्टेंस आ गया n फाई बाय आई से 0.0594 हेनरी। समझ में आया एग्जांपल? sir, what it यस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये एग्जांपल की हमें प्रैक्टिस करनी है। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्व एग्जांपल भी दिए हैं, अनसॉल्व भी दिए हैं, यू मेक इट प्रैक्टिस। इसके पहले के टॉपिक के ऊपर भी हमने बहुत सारे एग्जांपल क्लास में लिए थे, उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अभी यहाँ पे हमारा ये यूनिट लगभग खत्म हो गया है। ओके, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिट वी स्टडीड। अभी बाकी है तो आपकी पढ़ाई बाकी है, आपको बहुत सारा ये बुक्स इसके ऊपर पढ़ने हैं। ओके, और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। मैंने असाइनमेंट आपको 2 एक असाइनमेंट दिए थे, बराबर कि नहीं। आगे के भी एक असाइनमेंट व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर करूंगा, वो क्वेश्चंस, वो बुक में आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एनी डाउट, किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, तो ये फिगर आपको ऐसे निकालते जाना है। एग्जांपल में भी ऐसा फिगर निकाल, कॉइल दिया है तो कॉइल का फिगर निकालो, रिंग दिया है तो रिंग का फिगर निकालो, गोल कॉइल, बराबर कि नहीं। तो ऐसे निकालते जाना है। किसी को कुछ डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे, पूछ सकते हैं आप। sir,
PDF सेंड करा ना सर्व. हो पीडीएफ करतो मी तुम्हाला. आता आज सर्व पीडीएफ तुम्हाला शेअर करतो मी. ओके. चालेल. आज लेक्चर नंतर पूर्ण पीडीएफ मी तुम्हाला शेअर करतो. Sir, no doubt. यस. No doubt. काय म्हणतोस? नो डाउट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तो शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट यूनिट? तो हम आगे का एक यूनिट इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. ओके. फिर नेक्स्ट लेक्चर से उसका टॉपिक शुरू करेंगे हम. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. let me share the screen. Okay, for the next topic. यूनिट 2 करना है हमें. स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस. हाँ दिख रहा है सर. Okay, very good. So let us start with the next unit, and next unit is on electrostatics. Electrostatics and AC fundamentals. Okay, so AC fundamental जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले let us start with the electrostatics, and what is electrostatic वो भी हम देखेंगे. उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स इसके अंदर की बताता हूँ, so that you will be clear understand about what is the electrostatics. Okay, now we will give the brief revision on the electric charge and force. अभी ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स ये जो है, ये शुरू करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. हमें यदि कोई चीज पुश करनी है या पुल करनी है, ओके, सो व्हाट यू विल डू. एक बॉक्स है, ये बॉक्स को हमें उठाना है और अदरवाइज थोड़ा पुश करना है, उसे ढकलना है, तो व्हाट फोर्स अप्लाई करेंगे. क्या करते हैं आप? फोर्स अप्लाई करेंगे. यस, वेरी गुड. यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट बाय योर हैंड. अभी हाथ टच करने से वो खाली आगे जाता है क्या? नहीं. तो हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है. और ताकत लगाने के लोगों को है इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स लगाते हैं. और ये फोर्स लगता कैसे है भाई? बराबर ना? दैट इज नथिंग बट आवर मसल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, राइट? वी आर यूजिंग आवर मस्कुलर पावर फॉर शिफ्टिंग और फॉर पुलिंग और पुशिंग द बॉक्स. अभी ये जो है ऑब्जेक्ट को हम जो पुश कर रहे हैं, ये पुश, it is only, this object is being pushed only due to the electric charge. It is only due to the charge. अभी आप बोलेंगे सर हम तो हाथ से ढकल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कहाँ से आया? बराबर कि नहीं? तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि ये हम जो मसल्स पावर लगाते हैं, दैट टाइम आवर मसल्स जनरेट्स सर्टन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. बराबर कि नहीं? Means our cells are get excited, right? Our cells are get excited. सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा है. सेल के स्ट्रक्चर में क्या रहता है? सेंटर में न्यूक्लियस रहता है. बराबर? इट इज दैट न्यूक्लियस इज मर्ज्ड, और उसके अंदर कुछ आयंस रहते हैं. सोडियम आयंस रहते हैं, पोटेशियम आयंस रहते हैं, उसके बाहर भी कुछ आयंस रहते हैं सेल के, हाइड्रोजन आयन रहते हैं, राइट? और बहुत सारे कुछ आयंस रहते हैं. आयंस आर नथिंग बट आयंस
और कैटायंस, एनायंस एंड कैटायंस, ये ऐसे आयंस रहते हैं। और देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड के आयंस और सेल मेम्ब्रेन के बाहर के आयंस, राइट? दीज आर चार्ज्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस आर देयर, and depending on the negativity and positivity either inside or the outside of the cell, there will be the potential difference across the cell membrane. The cell membrane और जब ये potential difference रहता है means sodium pump action is there. Whenever sodium pump action takes place, that time your cell potential difference it is reached at the maximum level. Okay, और sodium ions are rushed to enter inside the cell membrane, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं सब, और वहां पे Na+ रहता है, वो सोडियम प्लस आयंस रहते हैं। तो मेम्ब्रेन के इनसाइड से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और मेम्ब्रेन के बाहर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, बराबर? तो ये जो चार्ज डेवलप होता है, और when we will apply certain force, that time क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, वो सेल नाउ इट इज कॉल्ड एज इट इज एक्साइटेड, दिस सेल इज नाउ एक्साइटेड। ओके, और हम ऐसे एक्साइटेड सेल जब क्रिएट होती है एंड when we are applying certain force, तो फोर्स अप्लाई करते हैं, that time that excited सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो यूटिलाइज होता है, और वो यूटिलाइज होके दैट पावर हमें मिलती है। ओके, वो पावर विल बी यूटिलाइज across for the shifting of the box, right? So the atoms, हमारे शरीर में भी एटम्स हैं, बराबर कि नहीं? एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे सेल में भी यही है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर कि नहीं? So it is as good as this atomic structure. So electrons and protons are subject to a force which does not affect neutrons. अब न्यूट्रॉन्स देखिए तो क्या है, न्यूट्रॉन्स बोले तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, बराबर? वो ऑल द टाइम दे आर न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरफ देखा जाए तो दे आर इलेक्ट्रिकली एक्टिव। Electron and protons are not electrically neutral, but they are electrically active, and electrons always have the negative charge, protons always have the positive charge. Positive. तो एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ चुके हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट? 5th स्टैंडर्ड से एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो क्या है एटम के स्ट्रक्चर में? एट द सेंटर देयर इज द, क्या है एट द सेंटर ऑफ एटम? न्यूट्रॉन। क्या है भाई एटम के सेंटर में? क्या है एटम का स्ट्रक्चर? इट इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। एटम का स्ट्रक्चर किसके साथ एनालॉगस है? सोलर सिस्टम। सन इज द सेंटर, राइट? और उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। तो इन दिस एटम के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है कि वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो ये हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स कहाँ पे है? प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इन दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों बैलेंस रहते हैं, राइट? पॉजिटिव चार्ज जितना अंदर है उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में रहता है। So to account for this force, electrons and protons are said to possess electric charge. Okay, ये force जो हमें लगता है, right? Electrons and protons are subject to a force which does not affect neutrons. वो न्यूट्रॉन्स को अफेक्ट नहीं करता है, न्यूट्रॉन कोई भाग नहीं लेता है, वो न्यूट्रल रहता है, बराबर कि नहीं? और भाग कौन लेता है? जिसके पास एनर्जी है, और एनर्जी किसके पास रहती है? न्यूट्रॉन के पास रहती है क्या? नहीं, तो एनर्जी रहती है हमारे प्रोटॉन्स के पास और इलेक्ट्रॉन्स के पास रहती है। और वो कैसे रहती है? अपोजिट रहती है, एक के पास पॉजिटिव रहती है, दूसरे के पास नेगेटिव रहती है, एंड दैट इज नथिंग बट द इट इज द
it is on the account of the force electrons and protons are said to possess electric charge. तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वही वो फोर्स लगा सकता है। अभी हमने बचपन से देखते आ रहे हैं अपोजिट लॉ ऑफ दीज आर द लॉज। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, बराबर, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ये बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे है? अपोजिटली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमने साथ नजदीक में लाया तो क्या करेगा? वो एक दूसरे से अलग जाएगा, क्योंकि दे आर लाइक चार्जेस। सिमिलरली मैंने प्रोटॉन प्रोटॉन को पास में रख दिया तो ये एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, और एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, वैसा ही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है, राइट। अभी ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हैं, वहां पे हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, राइट। लेकिन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दिस लॉ फॉर दिस चार्जेस इट इज सेम। फॉर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स। ओके, तो यही भाई फोर्स, यही है कि जिसकी वजह से वी कैन अप्लाई द फोर्स और ऑब्जेक्ट आगे जाता है। ओके, तो कन्वेंशन हमें देखना है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज। ओके, द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट द सेम एज मैथमेटिकल साइन। ओके, अभी हमने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रहते हैं तो माइनस ई लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते, बराबर कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय ई, बट अभी नेगेटिव चार्ज रहता है तो नेगेटिव चार्ज हम माइनस ई नहीं, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं नोट करेंगे। ओके, द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट द सेम एज मैथमेटिकल साइन। A different convention could easily have been adopted. Example, north and south pole. Okay, or the electron could have been deemed positive and the proton negative. The electron and the proton have equal and opposite charges. You remember, proton and electron both have equal and opposite charges. और equal and opposite रहते हैं इसलिए वो बैलेंस रहते हैं, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग तो बैलेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्टेन पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड ऑर्बिट। ओके, एसआई सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें यहाँ पे बताया है, E is equal to 1.602 into 10 the power minus 90 कूलोम। ओके, कूलोम ये इसका यूनिट है, राइट। कूलोम को भी डिफाइंड लेटर, हम बाद में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और वो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है 1.602 टू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। ओके, अभी एक करंट एम्पियर ये यदि मैंने फ्लो किया, ओके, एंड दैट विल बी करेस्पॉन्ड्स टू सिमिलर टू 1 कूलोम्स पर सेकंड, 1 कूलोम पर सेकंड। सो इट इज 6.3 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एंड दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। हमने देखा तो ये कितना है? बहुत ही बड़ा नंबर है। सो माइक्रोस्कोपिकली वी कैन रिगार्ड चार्ज एज कंटिन्यूअस rather than discrete. Okay, so charge is a continuous, it is not a discrete. And macroscopically there are equal number of positive and negative charges and they are well mixed, therefore electric forces tend to cancel out. So this allows gravity, which is much weaker, to dominate, and the ratio of electric and gravitational forces between an electron and a proton is F electric to F gravitational force, and that is equal to 2.3 into 10 to the power 39. Okay, so this is all about the basic concept of our electrons and protons, that is related to atom. Okay, atomic structure. Okay, and एक चार्ज क्या रहता है, फोर्स कैसे रहता है among the different charges. Opposite charges attract while like charges
repels. So you remember this. Okay. अभी इसके आगे हमें पढ़ना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या रहते हैं. ओके, एंड आफ्टर स्टडिंग द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर देन वी विल स्विच ऑन ओवर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, तो व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. अभी हमने पढ़ चुके हैं कि भाई कंडक्टर्स इज नथिंग बट जिसमें से करंट बहता है, राइट, दैट इज अ कंडक्टर. इंसुलेटर जिसके अंदर से करंट नहीं बहता, दैट इज द इंसुलेटर. ऐसा डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. ओके, ये सॉलिड सब्सटेंसेस जो है, राइट, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन. बराबर कि नहीं, एटम्स का पोजीशन फिक्स रहता है. नाउ न्यूक्लिय एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट मूव. न्यूक्लिय एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट मूव. न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है, वो हिलता नहीं है. बराबर कि नहीं. आउटर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्ट्रांगली और वीकली बाउंड. जो बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर ना, वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, वीकली बाउंड रहते हैं. स्ट्रांगली भी रहते हैं और वीकली भी रहते हैं. ओके, स्ट्रांगली बाउंड मींस व्हाट, इंसुलेटर. जिसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट के स्ट्रांगली बाउंड है विद न्यूक्लियस, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर. बराबर. और जिनके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लूजली बाउंड है, उनको हम बोलेंगे कंडक्टर. ओके, सो व्हाट इज इंसुलेटर. जे स्ट्रांगली बाउंड है